ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ اس کرۂ ارض پر رہنے والی تمام قوموں اور امتوں، قبائل اور اہل زبان کی واحد امید خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج پھر معزز ناظرین اور سامعین آپ کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے، اس شکر گزاری کے ساتھ کہ خداوند نے آج پھر میرے جیون میں یہ بڑے انمول لمحات بخشے ہیں کہ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کی سٹڈی کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ سیکھا وہ بانٹنے والا ہو سکوں۔ یہ وہ فریش من ہے جو خداوند مجھ سے اور آپ سے بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ میں خدا کے ہاتھ میں صرف ایک انسٹرومنٹ، ایک اوزار ہوں، لیکن وہ ہے جو ان مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کی دراڑوں کے جوڑنے کے بعد ان سے اپنے جلال اور اپنے نور کو پار کرتا ہے۔ اس بات کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں عہد عتیق میں سے انبیاء اکبر کی کتب میں سے دانییل نبی کی کتاب اور اس کے 8 باب میں ہم ہیں، اور ہم آیت با آیت ان آیات کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں آیت 20 سے آگے بڑھوں گا، یعنی دانییل 8 باب اور اس کی 20 آیت سے۔ اور یاد رہے کہ جب ہم دانییل 8 باب کا مطالعہ کر رہے تھے، یہاں تک پہنچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دانییل نے جو رویا دیکھی، اس رویا کو وہ سمجھ نہیں پایا، اور خدا کے ایک قدسی ایک فرشتہ نے دانییل پر ان باتوں کو ظاہر کیا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ وہ باتیں جو آج ہم آیات 20 اور 21 میں سیکھنے والے ہیں، ان باتوں کو بارہا بار آگے آ کر ان کو دیکھنا پڑتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ اس فرشتہ نے، اس قدسی نے، جبرائیل نے مقدس دانییل پر اس بید کو ظاہر کیا ہے کہ جو تو نے حیوانات دیکھے وہ کون ہیں اور کس کو پیش کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ میں ان آیات مقدسہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں کر دوں۔ 8 باب کی 20 سے 22 پہلے یہاں لکھا ہے، جو مینڈھا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا
इक्तदार उसका सा ना होगा। आमीन। ये वो आयात हैं जिन पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आज मैं यूं समझें कि पस मंजर के तौर पर इन आयात पर बात करूंगा कि बुजुर्ग दानियल पर जब यह भेद खोला गया, उस रोया से मुताल्लिक जो दानियल ने देखी थी, तो वो भेद क्या था। दानियल ने रोया में यह देखा कि मैं एक मेंढे को देखता हूं और एक बकरा देखता हूं, और उस मेंढे से मुताल्लिक भी तफसील हम देख चुके हैं 5 से 8 आयात में। और हम आज थोड़ी सी और डिटेल इन आयात के मुताबिक देखेंगे कि दानियल, जो मेंढा तूने देखा, तफसीर उसकी क्या है। उसके 2 सींग थे जो मेंढा तूने देखा है, और उस मेंढे के जो 2 सींग हैं वो मादी और फारस की सल्तनत या ममलकत को पेश करते हैं। और साफ जाहिर है कि जब कोई ममलकत और जब कोई बादशाहत है तो उसका कोई हाकिम आला भी होता है, बादशाह भी होता है। तो दानियल को बताया गया है कि ये मादी और फारसी 2 बड़ी सल्तनतें हैं, और एक सींग पहले से जरा ज्यादा बड़ा और ऊंचा था, और वो फारस को पेश करता है, क्योंकि फारस उस वक्त बनिस्बत मादियों के ज्यादा जोर आवर सल्तनत हमें नजर आती है। 21 आयत। और जो जसीम बकरा, कदावर, जोरावर, ताकतवर, जो तूने देखा है, वो यूनान का बादशाह है। और यूनान मौजूदा ग्रीस है। अथीने और करंतस और थिस्सलुनीके और फिलिप्पी और पतमस, बहुत सारे और बिब्लिकल इलाके मौजूदा ग्रीस यानी यूनान में पाए जाते हैं। लेकिन उस वक्त की जब हम बात करते हैं तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये जो यूनान की सल्तनत थी, जो ममलकत थी, ये कहां तक फैली हुई थी। ये कोई आज की जो मुख्तसर सी छोटी सी सल्तनत है, उतना वो यूनान नहीं था। वो बहुत दूर तक, जैसे फारसी और मादी मशहूर है, जैसे रोमी सल्तनत मशहूर है, बाएन वैसे ही हम यूनान की ममलकत के भी शोहरत और वसी होने की बाबत सीखते हैं। तो वो बकरा जो तूने देखा, वो यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। पहला बादशाह। अब हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब हम इस पहले बादशाह की बात करते हैं तो वो इस्कंदर आजम की तरफ उलमा इशारा करते हैं। अहले इस्लाम, इवन उनकी जो मुकद्दस किताब है, उसमें जुल्करनैन का नाम उसके लिए मुस्तअमल है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो इस्कंदर आजम है जो यूनान का पहला बादशाह है। और उसके टूट जाने के बाद, उस सींग के टूट जाने के बाद, याद रहे कि ये इस्कंदर आजम के नौजवानी की उम्र में मर जाने की बात हो रही है, उस सींग के टूट जाने की बात हो रही है। उसके बाद उसकी जगह जो 4 और निकले, यानी वो बीच वाला सींग तो टूट गया, इस्कंदर आजम गया,
اور اس کے بعد اس کی جگہ 4 اور سینگ نکلے اور لکھا ہے وہ 4 سلطنتیں ہیں. یعنی اسکندر اعظم کے مرنے کے بعد یہ 4 سینگ 4 بادشاہوں کو اور مملکتوں کو پیش کرتے ہیں. سے مراد یہ ہے کہ اسکندر اعظم کے 4 ایسے جنرلز تھے. عام زبان میں جرنیل کہتے ہیں لیکن ایکچولی لفظ جو درست لفظ ہے وہ جنرل ہے. تو جو اس کے جنرلز تھے 4 بڑے جنرل, انہوں نے یونان کی سلطنت کو منقسم کر دیا, یعنی تقسیم کر دیا, اور 4 نے اس یونان کی سلطنت کے حصص کو سنبھال لیا ہے. اور دیکھیے گا وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی, لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا. یعنی ان 4 کی سلطنتیں اور مملکتیں ہوں گی تو صحیح, بادشاہی وہ کریں گے, لیکن ان کا اقتدار اس پہلے بادشاہ یعنی اسکندر اعظم کی طرح نہیں ہوگا. اب یاد کیجئے کہ یہ جو اسکندر اعظم کی مملکت یا اس کی سلطنت کے منقسم کیے جانے کی جب بات ہو رہی ہے تو میں نے یاد ہے آپ کو کہ کہا تھا کہ کیسندر ایک وہ جنرل تھا جس نے یونان کے پریزنٹ یونان, موجودہ گریس اور اس کے گرد و نواح اور گریس کے جو علاقے ہیں ان کو اس نے سنبھالا, کیسندر, اور اس نے ان پر راج کیا اور حکومت کیا. دوسرا تھا لیسیمارکس, اور لیسیمارکس نے ایشیائی کوچک کا ایریا سنبھالا جس میں ترکی اور گرد و نواح کے علاقے موجود ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا تو دوسرے اور تیسرے ابواب میں جو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے وہ بھی ایشیائی کوچک میں ہی پائی گئی تھی. اور تیسرا جو جنرل تھا اس کا نام تھا سلوکیس, اور یہ سلوکیس موجودہ جس کو ہم سیریا کہتے ہیں یا شام اور اسرائیل جہاں اس وقت کافی کھلبلی ہے, شام اور اسرائیل اور ان کے بیچ کے جو علاقے ہیں ان پر وہ حاکم مقرر ہوا. تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت کی یونان کی مملکت اور سلطنت اور بادشاہی کتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی. اور پھر چوتھا جو جنرل تھا اس کا نام پٹولمی تھا, اور جو پٹولمی ہے وہ مصر پر حاکم رہا. مصر کتنا دور ہے, لیکن مصر کے علاقے تک تو آپ اندازہ کریں کہ یونان کی جو مملکت اوریجنلی تھی, معاف کیجئے, وہ یونان, ترکی یعنی ایشیائی کوچک, شام اور اسرائیل کی سرزمین اور ایون مصر تک پھیلی ہوئی تھی. اتنی وسیع اس کی مملکت تھی. لیکن جب اسکندر اعظم گیا تو اس کے بعد وہ جو سلطنت تھی وہ 4 مختلف جنرلز نے خود اپنے آپ کے لیے الگ الگ مخصوص کر لی اور انہوں نے اس کو منقسم کر لیا اپنے آپ پر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں دانیل 8 کی 23 آیت سے. یہ غور طلب باتیں ہیں کیونکہ ان پر ہم نے پہلے غور نہیں کیا. یہ 20, 21 اور 22 پر اس سے پہلے بھی ہم روشنی ڈالتے رہے ہیں, اس لیے مجھے مزید ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آیت 23 میں لکھا ہے, اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز
शनास बादशाह बर्पा होगा। वाओ, गौर से सुनिएगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में, किन की सल्तनत? वो जो 4 जनरल थे, उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में, जब उनकी सल्तनत तकरीबन इख्तिताम पजीर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, देखो बादशाहियों को जवाल होता रहा, बादशाह जवाल पजीर होते रहे, और वो जो जवाल इंसानी हिस्ट्री का एक अहम तरीन खासा रहा है। लेकिन हालेलुया, एक ही बादशाह है जो निरा बादशाह नहीं, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। उसकी सल्तनत अबदी है, उसकी बादशाही अबदी है, और उसकी तरह और उसकी मानिंद कोई और बादशाह ना तो था, ना है, और ना ही रहेगा। लेकिन इन 4 जनरल्स की सल्तनत के इख्तिताम पर क्या होगा? एक और उठेगा जो तुर्श रो होगा, यानी बड़ा तेज तराज, और रमज शनास बादशाह बर्पा होगा, ऐसा जो अंदर की बातें, भेद की बातें, उनकी बाबत जानता होगा। और बाय द वे, जब हम इस तुर्श रो और रमज शनास की बात करते हैं, तो मैं गुजरी दफा भी 12 बार कहता हूं कि ये जो एंतियाकस बादशाह था, इन 4 के बाद, जनरल्स के बाद, एंतियाकस वो रोमी था जो अब खड़ा हुआ था। एंतियाकस एपिफेनस, जिसका मैं जिक्र अक्सर करता रहा, एंतियाकस टाइटल है, नाम एपिफेनस था। तो एंतियाकस एपिफेनस एक ऐसा तुर्शरो, एक ऐसा जालम और दरिंदा खसलत आदमी था कि उसकी बाबत लिखा है तरशरो, तुर्शरो और रमज शनास, और इंतहाई जालमाना करदार उसने अदा किया, और अहले यहूद का उसने बहुत खून बहाया है। और एंतियाकस से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं और उसकी जालमाना हरकत के ताल्लुक से, तो एंतियाकस एंटी क्राइस्ट से मिलता जुलता है। उसके काम एंटी क्राइस्ट के साथ मिलते हैं, एंतियाकस के एंटी क्राइस्ट से। यानी एंतियाकस के बहुत सारे काम हम देखेंगे वो मुखालिफ मसीह से ताल्लुक रखते हैं। मैंने गुजरी दफा बात की थी कि एंतियाकस ने यरूशलेम में क्या कुछ किया था, बहुत डिटेल से हमने बात की है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां हमें नजर आता है कि यह बड़ा जबरदस्त होगा। एंतियाकस की बाबत बात हो रही है, लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा, और बरोमंद होगा, और काम करेगा, और जोर आवरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा। और बाय द वे, चूंकि उस वक्त तो मसीही लोग नहीं थे, यहूदी लोग ही थे, जिस सबब से ये अहले यहूद के खून खराबा किए जाने की बाबत बात हो रही है। यानी बड़ी होशियारी से ये मंसूबे बनाएगा, जैसा दानियल 9 की 27 आयत में हम देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि वहां पर क्या है लिखा है। और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी।
यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये बात हो रही है पहले एंतियाकस के बारे में, और एक जुमला मैंने कहा था, अगर आपको याद हो तो, उंजते रात दा खादा होया भुल जाइदा है। और वो जुमला ये था कि अगर हम पुराने अहदनामे के इख्तिताम पर देखें तो जो एंतियाकस एपिफेनस था वो पुराने अहद का एक मुखालिफ मसीह का या याहवे के मुखालिफ का रोल प्ले करता है। लेकिन एक और एंटी क्राइस्ट, एक और मुखालिफ मसीह जिसका ज़हूर होगा, वो इस अहद जदीद यानी नए अहदनामा के मुताबिक हम देखते हैं। तो गोया एंतियाकस और एंटी क्राइस्ट, एंतियाकस एपिफेनस और मुखालिफ मसीह, इन दोनों के करदार, इन दोनों के काम एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते हैं जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। तो याद कीजिए कि एंतियाकस शैतान के जोर पर काम कर रहा था, खुदा के हाथ में वो थोड़ा ही था, वो अब्लीस के जोर पर काम कर रहा था। और बाय द वे, जिन जिन ममालिक में इस वक्त आप और मैं रह रहे हैं, जरा सोचें कि अगरचे ममलकतें और हुकूमतें खुदा की तरफ से बनती हैं, लेकिन क्या उन ममलकतों और हुकूमतों के जो लीडर हैं, क्या वो खुदा से दानाई पाकर हुकूमत को चलाते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है अच्छी तरह से। लेकिन एक अहम तरीन बात जो यहां हमें नजर आती है वो ये है कि एंतियाकस शैतान के जोर पर काम करता था, और ऐसे ही जो मुखालिफ मसीह है, हमने मकाशफा की किताब में देखा है कि उसका भी कंट्रोल शैतान के हाथ में होगा, और वो भी बड़ी होशियारी से काम करेगा। जब मैं दूसरा थिस्सलुनीकियों के खत को पढ़ता हूं और उसके 2 बाब और उसकी 9 और 10 2 आयात, तो वहां लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा। गौर से सुन रहे हैं ना? उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक, हालेलुया, और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। कौन? मसीह। किसको? उस बेदीन को। कौन है वो? मुखालिफ मसीह, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी की हर तरह के धोखे के साथ होगी। इस वास्ते के उन्होंने हक की मोहब्बत को अख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। तो मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट और उसके फॉलोअर्स की बाबत यहां पर बात मिलती है कि मसीह अपनी आमद की तजल्ली और अपने मुंह की फूंक से उसको हलाक करेगा बाद इस मुसीबत के जमाने के। ये देखिए, गौर फरमाइएगा। और जो बात यहां हमने देखी है वो यही तो है कि वो क्या करेगा? जोर आवर और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा। अहद अतीक में एंतियाकस एपिफेनस की बात हो रही है, और अगर फ्यूचर की बाबत देखें
تو وہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اہل ایمان مسیحوں اور ایون یہودیوں دونوں کے برخلاف کھڑا ہوگا اور کام کرے گا۔ آیت 25، اور اپنی چترائی سے ایسا کرے گا، یعنی اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ ایسا کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا۔ یعنی جو کچھ اس نے سوچا ہے نا، اس کے مطابق وہ کرے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ابلیس کے ہاتھ میں چمچے ہوں گے، ہتھ کنڈے ہوں گے، اور وہ مخالف مسیح کا کلمہ پڑھیں گے، یعنی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہی لکھا ہے، اس کے دل میں بڑا گھمنڈ ہوگا اور صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ایک نئی ہیکل بنا کے اہل یہود کو دے گا، اس مقام پر نہیں جہاں تھی، بلکہ اس کے شمالی کچھ تھوڑے سے فاصلے پر۔ اس کے بعد وہ وہاں پر قربانی چڑھائے گا، سور کی قربانی، اپنا بت نصب کرے گا، قربانیوں کو موقوف کرے گا، ہیکل کی تکفیر اور توہین کرے گا، اور پھر اس وقت اس کے لیے یہ زوال کا وقت ہوگا۔ اس بات کو ذرا غور کرنا ہے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو اس نے عہد باندھا ہوگا نا، اس عہد کو وہ مکمل طور پر توڑ ڈالے گا۔ یعنی اس کے دل میں گھمنڈ آیا۔ اور انتیاکس اپیفینس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے دل میں بھی بہت گھمنڈ تھا اور غرور، اور آپ جانتے ہیں غرور اور گھمنڈ اس نے نسل انسانی کے تاریخ کے ہر دور میں ان کو جو بڑے کی ٹائپ لوگ تھے ان کو وہاں سے نیچے گرا دیا جس مقام پر وہ تھے۔ ساؤل بادشاہ جیسے لوگ بھی، اور ہیرودیس جیسے بھی، اور ایون آج کی دنیا میں بھی ہم زبور گاتے ہیں نا، مبارک اوسے دا حال جانو یا ہوا اتے بھروسہ جستا، گمنڈیاں کول او نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نال اور رکھدا یاری۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور بار بار میں یہ کہتا ہوں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، اور بار بار سدا نیویاں رکھانوں پھل لگدا تے جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاندا۔ جہاں کہیں آپ اور میں آج ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ میں غرور، گھمنڈ، میں خودی، بڑا پن کا جراثیم موجود تو نہیں ہے؟ اگر یہ وائرل ہے تو آج یسوع کے نام سے اس سے ہاتھ چھڑانے کی ضرورت ہے، اور اپنا ہاتھ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دے دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حوالہ، دوسرا تھسلنیکیوں، اس کا 2 باب اور اس کی 3 اور 4 2 آیات ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے، اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے
यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। रोमी बादशाहों में से कई ऐसे गुजरे जिन्होंने, डायोक्लिशन उनमें से एक था जिसने अनल हक होने का दावा किया, और यहां मुखालिफ मसीह वो है जिसने भी गोया खुदा के बराबर होने के लिए दावा करना है, और मुझे और आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अब बादशाहों के बादशाह का मुकाबला कौन कर सकता है? तारीख बताती है कि एंतियाकस एपिफेनस को एक ऐसी मर्ज लग गई, बीमारी, जिससे वो मर गया। किसी इंसान के हाथ से नहीं, ये ऊपर से उसकी अदालत हुई है, और मुखालिफे मसीह की भी अदालत और उसकी हलाकत हमारे मालिक और निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह के हाथों से ही होगी, क्योंकि मकाशफा 19 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। ऑलरेडी उनके लिए फैसला सादर हो चुका है, और मेरा दिल करता है मैं आगे बढ़ूं और इन बकिया आयात को मुकम्मल करूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद आगे बढ़ूं। अगर खुदावन ने मौका दिया, नेक्स्ट वीक फिर यहां से शुरू करूंगा। आपका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एंड टाइम है, और मैं और आप उस आखिरी वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें, कहीं हम धोखे में ना रह जाएं, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। अपने आप को फुली खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करने की जरूरत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 1, कहीं मैं किसी मुखालिफे मसीह की पैरवी तो नहीं करता। नंबर 2, मुझ में आजजी और इनकसारी और हलीमी का अंसर पाया जाता है कि नहीं। नंबर 3, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में गरूर और घमंड और बड़ापन की रूह पाई जाती हो, और कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आप को अपनी छोटी सी दुनिया के, भले वो हमारा खानदान है या कलीसिया है, उसके माबूद बना बैठे हूं। खुदा की अदालत से हम बच नहीं सकते। अगर ऐसा है तो आज हमें खुदावंद के हुजूर जहां कहीं है अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, और अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। उससे मुआफी तलब करने की जरूरत है, ताकि हम खुदावंद के साथ रास्ती से चल सकें। मुख्तसर सी दुआ मैं अपने लिए भी और आप सब के लिए भी करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, आपके कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, जो यकीनन हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये वो मेन्यू बुक है जो हमारे अंदर की टूट फूट को फिक्स करने के लिए हमें हदायत देती है। ये आपका लव लेटर है जो हमें बताता है कि गुनाहगार, मैंने तुझसे कितना प्यार किया कि अपनी गोद खाली कर दी। ओ खुदा बाप, मुमकिन कीजिए हम अपनी खुदी को, अपनी मैं और अपनी अना को मसलूब कर डालें यीशु के नाम से, और मुमकिन कीजिए कि हम बड़ी वफादारी के साथ, आजजी और हलीमी के साथ आपके साथ चलने वाले हों, और हमारे कान हर वक्त खड़े रहें, आंखें हर वक्त खुली रहें। ईमान के एतबार से हम 24/7 रेडी रहें,
क्योंकि खुदावन आपकी आमद अब किसी भी वक्त हो सकती है। उस आमद के लिए हमें तैयारी अनायत फरमाइए। और खुदावन मेरे नाजरीन और सामईन में अगर आज कोई इंतहाई डिप्रेस है, मायूस है, गमजदा और दुखी है, टूट कर लगता है कि बिखर चुका हो, बीमारियों ने घेर रखा है, यस्सु के नाम से, उसके दिए हुए इख्तियार के मुताबिक कि मेरे नाम से जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आओ। ऐ खुदावन, मैं उन तमाम नेगेटिव तासीरों के बरखिलाफ खड़ा होता हूं और चाहता हूं कि अपने लोगों को आप सुख, चैन, राहत, शिफा, बरकत और इत्मीनान बख्शिए, ताकि आपका जलाल आपके लोगों के वसीला से कसरत से जाहिर होता रहे। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। जिंदा मसीह के बेशकीमत नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबों को ढेरों बरकत से मामूर फरमाए, और अगर खुदा की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी दुआ है आप खुदावन की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।